Hello children, Namaste. I hope you're doing well. Welcome to the Hindi class. So, you're going to take your book, your copybook and pencil case with you. So, do you have your book in front of you? You're going to open it now. So, the topic is, first of all, you open it on page 45. विमल जी का खेत. खेत veut dire field. I am going to do the reading. Please follow. विमल जी का खेत था. विमल जी का एक खेत था. उन्होंने खेत में कुम्हारा रोपा था. कुम्हारा veut dire pumpkin. Giromo. लोग खेत के सामने से आते जाते थे तो कहते थे, वाह, यह खेत कितना हरा भरा है. C'est-à-dire, quand les personnes sont en train de passer près du jardin, il va dire, waouh, regarde comme c'est vert partout. देखो, बेलों पर कितने बड़े बड़े और हरे पीले कुम्हारे लगे हैं. Regarde combien de gros et orange et vert giromons on a dans cette carreau, n'est-ce pas? Quand vous avez l'habitude de passer près d'un carreau, si vous voyez quelque chose pareil, vous allez dire, n'est-ce pas? Next page now, follow. हर शनिवार को विमल जी बाजार में कुम्हारे बेचते हैं. Chaque dimanche, Vimal va vendre des girobots dans les bazars. दो मजदूर सवेरे ही 6 बजे बेलों से कुम्हारे काटते थे. Il y avait deux personnes qui partent cueillir les giromots dans la liane. Normalement, les giromots poussent dans la liane, d'accord? विमल जी काम की देख रेख करते थे. Et monsieur Vimal, qu'est-ce qu'il faisait? Il supervise tous les travaux. 2 घंटे बाद एक छोटी लॉरी आती है. Après 2 heures de temps, un petit camion va venir. वह खेत के किनारे खड़ी हो जाती है. Va se border près du carreau. मजदूर लॉरी में कुम्हारे लाते थे. C'est-à-dire les मजदूर, les farmers, va apporter les giromons dans le camion, va garder. लॉरी भर जाती थी तो वह बाजार की ओर जाती थी. Quand le camion va remplir, on va se précipiter vers le bazar. कुम्हारों से भरी लॉरी 8:30 बजे बाजार पहुंचती है. Vers 8 heures, le camion rempli avec giromons va rentrer dans le bazar. विमल जी बाजार में अपने 2 बेटों के साथ कुम्हारे बेचते हैं. Avec les 2 garçons, विमल जी va vendre des giromons. कुम्हारे ताज़ा और सस्ते होते हैं. Le giromon était fresh et aussi cheap. इसीलिए ग्राहक जल्दी ही सभी कुम्हारे खरीद लेते थे. C'est pour ça que les personnes vont acheter les giromons vite vite. विमल जी और उसके 2 बेटे खुशी खुशी पैसे लेकर घर लौटते हैं. Et puis ensuite, quand il va avoir l'argent, il va retourner à la maison happily. Now, look at the question. इन प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए. Write the correct answer for the question. You're going to circle the correct answer, okay? I'm going to read the question for you. You please circle the answer. विमल जी का खेत कैसा था? Turn the page. कौन खेत में कुम्हारा काटता था? Circle the answer. विमल जी कहाँ पर कुम्हारे बेचते थे? You circle the answer.
ग्राहक क्यों कुम्हारे जल्दी खरीद लेते थे? सर्कल द करेक्ट आंसर. उबा, प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कंप्लीट सेंटेंसेस. कैसे लोरी खेत में आती थी? लोरी आकर कहाँ खड़ी हो जाती थी? यू हैव टू कट कहाँ. लोरी कितने बजे बाजार जाती थी? विमल जी किसके साथ कुम्हारे बेचते थे? कट किसके. You're going to work this question by yourself at home. Search for the answer in the comprehension. You'll find it. It is very easy. Search for the keywords. You're going to find the answer. Okay. Now look here. We have तीन काल. हमारे तीन काल हैं. भूतकाल past tense. We have वर्तमान काल present tense. भविष्यकाल का मतलब है future tense. I give you an example. काल. आइए बच्चों, देखें यहाँ क्या हो रहा है. मैंने खाना खाया. मैं खाना खा रहा हूँ. मैं खाना खाऊंगा. बच्चों, इनकी बातें सुनकर पता चलता है कि खाना खाने की क्रिया पहले वाक्य में हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है और तीसरे वाक्य में क्रिया होगी. So you can see in the first image, मैंने खाना खाया, c'est-à-dire c'est dans le past tense. The second one, मैं खाना खा रहा हूँ, c'est present tense. And the third image, मैं खाना खाऊंगा, c'est-à-dire dans le future tense. Dans le photo même, vous allez voir dans le premier image, ici, on a terminé de manger. Ici, on attend pour on est en train de manger. And then here, on va manger maintenant. On n'a pas encore commencé, on va commencer. D'accord? दरअसल इन वाक्यों से हमें क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है. इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके पता चले उसे काल कहते हैं. बच्चों, काल के तीन भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल. भूतकाल means past tense, वर्तमान काल का मतलब present tense और भविष्यत काल का मतलब future tense. Okay? सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में जानेंगे. क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं. जैसे कल बस खराब हो गई थी. माँ ने कपड़े धोए. मीना पढ़ रही थी. बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाओं हो गई थी, धोए, पढ़ रही थी से काम के बीते हुए समय में होने का पता चल रहा है. Où est-ce que vous avez हो गई थी, धोए रही थी? Où est-ce qu'on a था, थी, थे? C'est dans le past tense. Okay? इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं. अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से काम के बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं. C'est-à-dire le travail qui est passé dans le passé. D'accord? C'est dans le past tense. C'est ça on appelle भूतकाल. वर्तमान काल. वर्तमान यानी चल रहा समय. बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं. Just like in the first image, दादाजी ठंडी हवा चल रही है. C'est-à-dire we are having fresh air. मैं टीवी देख रहा हूँ. Je suis en train de regarder le télé, c'est-à-dire ce qui se passe maintenant. C'est ça qu'on appelle present tense. जैसे ठंडी हवा चल रही है. मैं टीवी देख रहा हूँ. बच्चे खेल रहे हैं.
Dans la phrase, you can see the first sentence, चल रही है, देख रहा हूँ, खेल रही है. C'est-à-dire dans le present tense, we use है या हूँ. D'accord? इन वाक्यों की क्रियाएं चल रही है, देख रहा हूँ, खेल रहे हैं से काम के चल रहे समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं. अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया का जो रूप उसका चल रहे समय में होना सूचित करता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं. भविष्यत काल. बच्चों, भविष्यत का अर्थ है आने वाला समय. क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में हो. इस स्लाइड में हमें भविष्यत काल दिखाई देती है, जिसका मतलब है क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं. C'est-à-dire ce qui va arriver. For example, मैं कनाडा जाऊंगा. निशा डॉक्टर बनेगी. मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा. D'accord? C'est-à-dire, we have the word जाऊंगा, बनेगी, सिखाएंगी. C'est-à-dire काम का आने वाला समय में होना. Ce qui va arriver dans le future. C'est ça on appelle भविष्यत काल. Is it clear for you? Is it easy now? भविष्यत काल की क्रियाएं, c'est-à-dire dans भविष्यत काल, dans le future tense, we are going to add जाऊंगा and all. आज के लिए इतना काफ़ी है. ध्यान के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद. आशा करती हूँ कि आप अपने सेहत की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ. ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद. प्रणाम. अलविदा. गुड बाय.